వి గోల్డ్ ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్ మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడును. గబ్బర్ సింగ్ మూవీ కంటే ముందు చాలా ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయి సార్. పవన్ కళ్యాణ్ I heard. పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న మూవీ గబ్బర్ సింగ్. విజిల్ డాన్స్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హాస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద డే. నాకు కొంచెం తెక్క ఉంది కానీ దానికి లెక్క ఉంది. अभी भी वो कोई भी फिल्म करते हैं तो सोचते हैं कि मैं उसमें काम करूं. अभी पिछली बार भी ऐसा हुआ था पर कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया. मैं वो नहीं हो पाया पर बहुत जल्द अभी हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं ओजी. లైలా ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీ లుక్స్ వైజ్ కానీ అండ్ మీ యాక్షన్ వైజ్ కానీ అరే మనం అనుకున్న సరేనా అభిమన్యు గారేనా? विश्व का भी जो इमेज रहता वो पूरा चेंज हो जाता. मेरा भी पूरा इमेज चेंज हो जाता. तो हम दोनों के लिए मोस्ट चैलेंजिंग रहता है ये मूवी. హాయ్ మా నీ ఛాతి చూసాక నా ఛాతి చపాతీ అయింది. लैला इज ब्यूटीफुल. सर उसी शूटिंग में एक गोस्ट विलेज में शूटिंग कर दिया ना. सो नाइट टिप्स हाँ, थोड़ा ज़्यादा डर हो गया. हाँ, सो उसी टाइम में कैसा किया सर? वो उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा रहता है बिकॉज मेरे को कुछ मालूम नहीं रहता कि ये क्या है. Okay. पर मेरे को देख के ऐसा लगता कि कुछ बहुत ही वियर्ड चीज रहता. టాప్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి కాల్ కానీ లైక్ రాజమౌళి గారు, సుకుమార్ గారి దగ్గర నుంచి కానీ సో కాల్స్ ఎప్పుడైనా వచ్చాయా ఏదైనా మూవీ గురించి అలా? There are so many. బోలో సార్ ప్లీజ్. अरे नॉर्मल खाना इंडियन नॉर्मल खाना. हाँ, अभी मैं नॉनवेज बहुत कम कर दिया तो उससे भी वेट लूज करने में काफी फायदा हो रहा है. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్. నేను మీ చాణక్య. ఈరోజు మన రియల్ టాక్ విత్ చాణక్యలో చాలా విలనీ క్యారెక్టర్స్ అనేది కూడా చేసి అండ్ రీసెంట్ టైమ్స్లో కూడా ఒక పర్ఫార్మర్గా కూడా ముందుకెళ్తున్న ఒక యాక్టర్ ఇప్పుడు మన ముందుకు రాబోతున్నారు. రక్త చరిత్ర మూవీలో బొక్కారెడ్డి అనే క్యారెక్టర్ మన తెలుగు వాళ్ళకు ఎంత ఎక్కిందంటే ఆ మూవీ వచ్చి సుమారు ఒక 15 సంవత్సరాలు అవుతున్నా కానీ ఇప్పటికీ ఆ క్యారెక్టర్ని తలుచుకుంటే ఒక భయం అనేది కల్పిస్తుంటుంది. ఆ తర్వాత వచ్చిన సిద్ధప్ప నాయుడు, మరి గబ్బర్ సింగ్ మూవీలో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి పోటాపోటీగా విలనీగా యాక్ట్ చేసిన మరి అభిమన్యు సింగ్ గారు ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నారు. మరి ఆయన ఫిల్మో జర్నీ చూసుకుంటే కేవలం రక్త చరిత్ర దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ అయింది అని మనం అనుకుంటాం. లేదు, సుమారు 2001 నుంచి చాలా హిందీ మూవీస్లో కూడా నటించి మరి ఫైనల్గా రక్త చరిత్రతో ఒక మంచి బ్రేక్ అనేది కూడా వచ్చి ఆ తర్వాత లైఫ్ అనేది ఎలా ఉంది అండ్ ఆయనను చూసిన తర్వాత మన అందరికీ ఏమనిపిస్తుందంటే ఆయన అరే ఇలా ఉంటారు అలా ఉంటారు అనుకుంటాం, కానీ ఆయన కంప్లీట్గా ఒక ఫ్యామిలీ మెన్ తెలుసా. మరి అలాంటి ఫ్యామిలీ మెన్ ఆయన అభిమన్యు సింగ్ గారితో ఈరోజు మన రియల్ టాక్ విత్ చాణక్య ఉండబోతుంది. మరైతే ఆయన ఉన్నారు, ఆయనతోనే మాట్లాడదాం. హాయ్ సార్, ఎలా ఉన్నారు? ఐఎమ్ గుడ్, ఐఎమ్ ఫైన్. హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్ సార్. అభిమన్యు సింగ్ గారు వస్తున్నారు అంటే రియలీ రక్త చరిత్ర మూవీని థియేటర్లో చూసిన ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కూడా గుర్తొస్తుంది. సో యు ఆర్ వెల్ నోన్ ఇన్ తెలుగు టు ద తెలుగు ఆడియన్స్. Thank you. సో హౌ ఆర్ యూ? I am great. I am doing great. Whenever I come to Hyderabad, I feel very good. And this time I am here to promote my upcoming movie, Laila. Yeah. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ లైలా. Okay. ఓకే, అండ్ లైలా ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీ లుక్స్ వైజ్ కానీ అండ్ మీ యాక్షన్ వైజ్ కానీ అరే మనం అనుకున్న సరేనా అభిమన్యు గారేనా ఇలా కనిపించేది అని చెప్పేసి ఒక డిఫరెంట్ జోన్లో మనం చూపించబోతున్నారు. సో ఎంత వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ లైలా? See, you can expect a lot from Laila because जब डायरेक्टर राम मेरे पास आता तो उसका कन्विक्शन मुझे इतना अच्छा लगता है. और मैं उससे पूछता कि तुमने मेरा कौन सा फिल्म देखा, रक्त चरित्र देखा? तो ही सेड या आई सॉ रक्त चरित्र, आई सॉ गब्बर सिंह. I said then how come did you decide to cast me in a comic role like this? And with so much of variations and light-hearted comedy. He said sir आप कर लेते, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस रहता, मैं आपको ही सोच के ये कैरेक्टर लिखा.
देन आई सेड ओके इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट देन आई एम ऑन. और वहाँ से स्टार्ट होता और इनफैक्ट मेरे और बहुत अच्छी टीम मिल जाती वहाँ पे. विश्वक मेरे छोटे भाई जैसा लगता मुझे. वाओ, ओके. और बहुत अच्छा उसके साथ ट्यूनिंग रहता. सारे एक्टर्स बहुत अच्छा काम करते और फर्स्ट डे से ही सेट पे एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स रहता. और फटाफट बहुत फास्ट काम होने लगता और पता चलता कि जो सीन डायरेक्टर ने जैसा अज्यूम किया है, जैसा पेपर पे लिखा है, उससे भी आगे चले जाता सीन. और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कुछ चीज़ें होने लगती ऑन द सेट. और हर कोई जो उधर शूट करते वक्त हंस रहा है, लाइटमैन भी हंस रहा है, कैमरामैन भी हंस रहा है, हर कोई हंस रहा है. तो वहीं से एक फीलिंग आ जाता कि ये बहुत ही पॉजिटिव अच्छे नोट पे फिल्म शुरू हो रहा है. और काफ़ी एंटरटेनिंग है और सिचुएशनल कॉमेडी है. ऐसा नहीं रहता कि फोर्सफुली किसी को हंसाने का ट्राई कर रहे हैं या कुछ भी नहीं. सिचुएशन में ही कॉमेडी रहता. तो एक्टर अपना काम बहुत सीरियसली कर रहा, लेकिन आपको देख के हंसी आती. Yeah. లైలా ఏ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ అని మనం అనుకోవచ్చు? ఇట్స్ ఏ కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ ఆర్ ఇట్స్ అన్ ఏ యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్? यूथफुल एंटरटेनर आई वुड से. बट ऐसा नहीं रहता हर एज का लोग इसको जाके देखता और उनको मज़ा आता. बिकॉज एक बहुत ऐसा एलिमेंट रहता कि आप देखते रहते नॉर्मल सीन पे भी चेहरे पे एक स्माइल तो रहता ही. ఓకే. तो ये मैं क्रेडिट देता डायरेक्टर को, राइटर को, जो इन लोगों ने ऐसा स्टोरी क्रैक किया और उसके बाद वो लोग स्टिक किए. जो एक्टर्स उनको चाहिए तो वही एक्टर उन लोगों ने ऑन बोर्ड लिए. तो मैं ऐसा कहूँगा कि बहुत ही अलग सा हिलेरियस एक एक्सपीरियंस रहता लैला में. లైలామే. या సార్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అనేది కూడా ఇంతకుముందు మీరు ఎప్పుడు చేయలేదనిపించింది సార్, ఇన్ తెలుగు ఎస్పెషల్లీ. సో ఐ థింక్ కొంచెం మాత్రం శివం మూవీలో కొంచెం చూపించారు. हाँ लिटिल बिट या Little bit. या लिटिल बिट या బట్ అక్కడ సో ఒక డిఫరెంట్ అభిమన్యు సింగ్ గారిని మేము చూసాం. करेक्ट ఇక్కడ కంప్లీట్ వేరియేషన్ ఉండబోతుందా? करेक्ट कंप्लीट वेरिएशन बिकॉज द कैरेक्टर डिमांडेड मी टू बी सो डिफरेंट. ఓకే. बिकॉज जब आप फिल्म देखते तो आपको लगता कि मैं इतना वॉइस मॉड्यूलेशन, इतना सीन में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहता और बहुत एज पे रहता. ऐसा एज पे रहता कि थोड़ा सा उधर जाता तो कैरिकेचरिश लगने लगता. हाँ. और ओवर एक्टिंग हो जाता. యా. तो एक्चुअली ऑल द टाइम यू हैड टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस. ఎస్. और वो बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट रहता कि आपको वही सही नोट पे हिट करना रहता सीन और उसके बाद वो सही लग रहा. बिकॉज कॉमेडी में एक ये डेंजर रहता ना कि वो थोड़ा सा ओवर हो जाता तो ट्रेजेडी हो जाता है. ఎస్పెషలీ కామెడీ అనేది చాలా డిఫికల్ట్. Correct. నాట్ సో It's ఈజీ. not so easy. Yes. సో కొంచెం భయపెట్టేది ఇలా అంటే ఇట్స్ ఓకే. Correct. బట్ ఈ But I have done theater, so Yeah. that is why comedy comes easy to me, because in theater I have performed a few plays जहाँ पे काफ़ी कॉमिक में कैरेक्टर प्ले किया. ఓకే. అండ్ హైదరాబాద్ గల్లీస్ ఎలా ఉన్నాయి? हैदराबाद गली में भी यहाँ का ह्यूमर मेरे को बहुत अच्छा लगता है. यहाँ का जो टोन रहता है हिंदी का वो सब बहुत यहाँ का बहुत सटल और अच्छा ह्यूमर रहता है हैदराबाद का. तो ओल्ड सिटी का भी थोड़ा सा फ्लेवर रहता है ये फिल्म में. न्यू सिटी का भी रहता, मॉडर्न, ऑर्थोडॉक्स, सब मिक्स करके एक फुल बहुत टेस्टी थाली रहता है. ఓకే. సో మీకు బిర్యానీ అంటే ఇష్టమా? Yeah, very good. I love Hyderabad biryani. I've been eating for last 10 years here. లాస్ట్ 10 ఇయర్స్. ఓకే సార్, కమింగ్ టు దిస్ మూవీ, విశ్వక్ గారు లేడీ గెటప్ Yeah. అనేటప్పటికి ఒక డిఫరెంట్ హైప్ అనేది కూడా వచ్చింది. Yeah. అండ్ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీ క్యారెక్టర్తో సో ఆయన జల్లప్ అయ్యే థింగ్ అనేది చూసేటప్పటికి ఇంకా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగిపోయాయి. ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మ్యాచ్ చేయగలుగుతారా ఇన్ Feb 14? Yeah, I think 100% it will match, because for Vishwak also it was very challenging, because Vishwak का भी जो इमेज रहता वो पूरा चेंज हो जाता. मेरा भी पूरा इमेज चेंज हो जाता. तो हम दोनों के लिए मोस्ट चैलेंजिंग रहता है ये मूवी. Yeah. बट एज यू आर सेइंग, आई एम 100% श्योर दैट इट विल बी अप टू द मार्क. और जो एक्सपेक्टेशन ट्रेलर में जनरेट होता वो 100% फुलफिल होता उधर ऑडियंस को. ఓకే. అండ్ హౌ ఇస్ ద లైలా? लैला इज ब्यूटीफुल. నేను నిన్న హీరోయిన్ని ఇంటర్వ్యూ చేశాను, ఆకాంక్ష. ఓకే. సో ఆకాంక్షకి కూడా జెలస్ వచ్చిందంట. సో వెల్ వాచింగ్ ద లైలా. సో She was jealous of me. జెలస్ ఆఫ్ లైలా. Laila, yeah, of course she had to be. Yeah. Because
post interval, it's Laila is the heroine and I'm the hero. Yeah. तो थोड़ा सा उसको लगता कि अब तो ये हीरोइन बन गई तो अब मेरा क्या होता है. हाँ, हाँ. సో ఈ మూవీ అనేది మీ ఫిల్మోగ్రఫీలో ఎలా స్పెషల్గా ఉండబోతుంది అనుకోవచ్చు. Yeah, Richard, he's done a great job as a cinematographer. वो जैसा कलर का यूज़ करता वो बहुत अच्छा कलर्स यूज़ करता बिकॉज हर सब्जेक्ट का ना एक अलग टेक्सचर रहता. हाँ. जो भी सब्जेक्ट रहता सिनेमा रहता उसका टेक्सचर अलग रहता. तो इसका करेक्ट टेक्सचर उन लोगों ने मिलकर क्रैक किया और बहुत ही बढ़िया सूदिंग रहता आईज को. ఓకే. और जहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट है आई एम वेरी हैप्पी विद कैमरामैन. అండ్ మీలో ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్ కామికల్ యాంగిల్ అనేది లైలాలో చూడబోతున్నాం. సో కాంబినేషన్లో విలనీ అనేది కూడా మేము చూడొచ్చా ఇందులో? Villain is like he's coming and going back. I'll start as a villain. ఓకే. But I am not the villain. You will realize that, okay, he is the other hero of the film. So the villain becomes the hero in second half and the hero becomes the heroine. ఓ మై గాడ్, దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్. Yeah, a lot of twists and turns, and it's very shocking. And in the end, there is a realization, and a very, very. It ends also in a very emotional way, Okay. on a very emotional note. ఓకే. Yeah. దట్స్ నైస్ సార్. Thank you. అండ్ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ Feb 14th Yeah, లైలాలో Laila. పర్ఫార్మెన్సెస్. Yeah. అండ్ తెలుగు ప్రేక్షకులని భయపెట్టిన మూవీ, మీరంటే ఏంటో పరిచయం చేసిన మూవీ రక్త చరిత్ర. रक्त चरित्र, yeah. అంటే రక్త చరిత్ర మూవీ మీ లైఫ్లో ఎంత స్పెషల్? So Ram Gopal Verma, credit goes to Ram Gopal Verma for Rakta Charitra. After Gulal, he decided to cast me in Rakta Charitra. I was very happy because at that point of time it was a dream for every actor Yeah. to work with Ram Gopal Verma, and the dream came true. फिल्म जब शुरू होता, स्टार्ट होता शूटिंग, तो राम गोपाल वर्मा इतना ज़्यादा मुझ पे फोकस करते पूरे शूटिंग में. और शूटिंग नहीं रहता तो अपने ऑफिस में बुला के मुझे कैरेक्टर के बारे में बताते. हाँ. ये वो कैरेक्टर ऐसा रहता वैसा रहता. वो पूरा 2-3 महीना मैं उसी जोन में रहता और जो भी राम गोपाल वर्मा सोच रहे थे वो पूरा ट्रांसलेट करवाते मुझसे ऑन स्क्रीन. ఓకే. ओबुल रेड्डी का किरदार, బొక్కారెడ్డి. बुक्का रेड्डी. हाँ, ओबुल रेड्डी वॉज द रियल कैरेक्टर्स नेम. और जब वो होता उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगता. बहुत डिफ़िकल्ट कैरेक्टर रहता वो. उसके बाद वो ख़त्म हो जाता फिल्म, उसके बाद मैं उसको कैरेक्टर को मिस करता कि वो यार वैसा इंटेंसिटी वापस से कब आता या वैसा कैरेक्टर कब मिलता जिसमें इतना परफॉर्म करने को रहता. और वो फिल्म के बाद इधर मेरा करियर टेक ऑफ हो जाता, इधर काफ़ी काम मिलने लगता, नॉर्थ में भी, बॉलीवुड में भी काम मिलने लगता. तो काफ़ी स्पेशल रहता रक्त चरित्र సార్ मेरे दिल के. ఈ రక్త చరిత్ర అనే మూవీ మీ లైఫ్లో ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ అనుకోవచ్చా? या इजीली इट्स अ टर्निंग पॉइंट. సో సౌత్ ఇండియన్ పీపుల్కి అటు నార్త్ ఇండియన్ North Indian పీపుల్కి, too. ఆల్రెడీ నార్త్ ఇండియన్ పీపుల్కి అయితే మీరు ఇంతకుముందు చేసిన మూవీస్ అనేది కూడా దాని ద్వారా కొంచెం గుర్తింపు అనేది కూడా వచ్చింది. Yeah, a little bit they had already known me for Gulal and everything, but with Rakta Charitra everybody knew that okay, there is some actor who came. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ రక్త చరిత్ర అండ్ బిఫోర్ రక్త చరిత్ర, సో అభిమన్యు సింగ్ గారి లైఫ్ ఎలా ఉంది? Life just changed after Rakta Charitra, because after Rakta Charitra I started getting some good work and some big money. So straight away from a struggling life I take a jump and started leading a decent life. तभी मेरा बेटी पैदा हुआ था तो मैं फिर उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना, ये वो सब शुरू हो जाता. तो वो पूरा रक्त चरित्र के पहले और रक्त चरित्र के बाद एक अलग ही एक नया जन्म होता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ. నైస్. ఆ బొక్కారెడ్డి క్యారెక్టర్, సో ఆ స్టడీ చేసే టైంలో యూ టేకెన్ నియర్లీ 2 months టైం అని చెప్పేసి అన్నారు టు స్టడీ దట్ క్యారెక్టర్, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ ఎవ్రీ. సో దీని గురించి సపరేట్గా ఎవరైనా క్లాసెస్ తీసుకోవడం కానీ, లేదా రాయలసీమ అక్కడ అంటే ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉండడం కానీ, రీసెర్చ్ కానీ అలాంటి ఏమైనా మీరేమైనా చేశారా? Ram Gopal Verma knew every single detail about the character and the story. So he told me everything and he asked me that do you want to go that side, just look around. I said no sir, whatever, because Ram Gopal Verma बहुत अच्छा नरेटर रहते. वो जैसा नरेट करते तो आपको सब कुछ उधर ही दिख जाता, तो कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ता. फिर मैं बिहार से आता तो बिहार भी थोड़ा सा वायलेंट एनवायरनमेंट में रहता.
मेरा चाइल्डहुड में मैं स्ट्रीट फाइट्स देखता, खुद भी मैं स्ट्रीट फाइट में कई बार इन्वॉल्व रहा। तो वो सेम वही रायलसीमा का ही उधर भी इंटेंसिटी रहता। तो मेरे लिए ये कोई नया फिनोमेना नहीं रहता कि कुछ नया रहता। तो मैं वो वायलेंस से मैं वाकिफ रहता। Okay. अब उसको मुझे करने का है, तो वो एक चैलेंज था बस। ఓకే సార్ ఈ స్ట్రీట్ ఫైట్స్ సో ఎప్పుడు ఎప్పుడు చేశారు ఇవన్నీ? Yeah, street fight used to happen at that point of time in Patna, when I was growing up, like 15, 16 years old, and sometimes those fight used to turn very ugly, and me and couple of guys are hitting each other. ऐसा 20 फीट के डिस्टेंस पे, 10 फीट के डिस्टेंस पे एक दूसरे को बड़े बड़े ब्रिक से मार रहे हैं, पत्थर से मार रहे हैं, ऐसा सिचुएशन भी आता उधर। Okay. और फिर धीरे 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 माई फादर रियलाइज दैट नाउ द थिंग्स आर गेटिंग वर्स, एंड ऑल दिस किड्स जिसके साथ मैं लड़ाई करता या करता, वो लोग मेरे लिए कुछ और प्लान करते। तो फिर थोड़ा सा वो हुआ और मैं वहाँ से निकल गया पटना से और दिल्ली चला गया पढ़ने के लिए। ఓకే अभी जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, वही लड़के जिनसे मेरा फाइट होता था वो सब मुझे देख के खुश होते और वो बोलते कि अरे मैं तेरा ये देखा फिल्म, वो देखा फिल्म। अभी सब दोस्त हो जाते। Okay. पर वो टाइम काफ़ी स्ट्रीट फाइट्स होते थे। उस टाइम थोड़ा सा वायलेंट माहौल था, हर गली में एक क्रिमिनल रहता, ऐसा आप समझ लो। ఓకే 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 లక్కీ మీరైతే ఇలా యాక్టర్ అయిపోయారు, వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. అంటే ఈ ఫిల్ము అంటే ఫిల్మ్స్లోకి రావాలని చెప్పేసి ఎలా అనిపించింది? అంటే మీ బ్రదర్ త్రూ అలా అనిపించింది ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది, లేకపోతే ఎలా? ब्रदर, हु ब्रदर? चंद्रचूड़ सिंह? Yeah. No, no, he is not my brother. నాట్ యువర్ బ్రదర్? No, 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 no. Yeah, ఇంటర్నెట్ మొత్తం I know, I know. బ్రదర్ అని అంటున్నారు. हाँ, ये पूरा का पूरा मिसकॉन्सेप्शन रहता। Okay. पर मेरा कोई नहीं रहता इंडस्ट्री में। मैं पहला आदमी आता और इधर ही अपना स्ट्रगल करता और मैं खुद ही अपना जगह बनाता। तो चंद्रचूड़ सिंह का छोटा भाई रहता, उसका नाम भी अभिमन्यु सिंह रहता। ఓకే और वो प्रोड्यूसर रहता और हम दोनों सेम कॉलेज में रहते। वो मेरा सीनियर रहता, तो इसीलिए वो पूरा कंफ्यूजन रहता। वो भी राजपूत रहता, मैं भी राजपूत, पर वो चंद्रचूड़ राजस्थान से रहता, मैं बिहार का रहता। సార్ మరి చంద్రచూర్ గారు మీ బ్రదర్ కాదు, సో దెన్ హౌ యువర్ ఫిల్మో జర్నీ స్టార్టెడ్? मैं आया इधर और बॉम्बे आके मैं ऑडिशंस में जाने लगा। कहीं सिलेक्शन नहीं होता तो मेरे को समझ में आ जाता कुछ प्रॉब्लम है मेरे में। तो फिर मैं थिएटर करता। ఓకే तो थिएटर करता तो थिएटर में काफ़ी लोग आते, शो देखते। लकली मैं मकरंद देशपांडे के साथ थिएटर करता, जो काफ़ी वेल नोन रहते इंडस्ट्री में। ఓకే तो उनके फ्रेंड्स आशुतोष गवारेकर, गोविंद निहलानी, श्याम बेनेगल, ऐसे डायरेक्टर्स आके प्ले देखते उनका। तो उसमें एक दो अच्छे डायरेक्टर्स ने देखा, जैसे आशुतोष गवारेकर ने देखा, तो टेलीविज़न में उन्होंने अपनी सीरियल में मुझे कास्ट किया। तो ऐसे थिएटर से मैं सीरियल में गया సీరియల్ ఓకే और फिर सीरियल से मूवीज़ में आया। तो स्टेप बाय स्टेप స్టెప్ करके బై స్టెప్. ఈ బాంబేకి ఎప్పుడు వచ్చారు మీరు? ఇన్ విచ్ ఇయర్ యూ స్టార్టెడ్ దట్? I started 2000. The 2000. moment I came, I started doing theatre and Manoj Bajpayee saw my play, Airawat, और उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया राकेश मेहरा को, और राकेश मेहरा ने मेरा कास्टिंग किया अक्स में। ఓకే हाँ, तो वो मेरा पहला मूवी था। ఓకే చాలా క్విక్గా మీరైతే ఏంటంటే థియేటర్స్ చేస్తేనే Yeah, theatre, yeah. ద లైఫ్ Yeah. ఉంటుంది అని అనుకొని Yeah, మీరు changed, yeah. సో అక్సా Aks, yeah. Aks. With Amitabh Bachchan and Manoj Bajpayee. Yeah. But unfortunately the film flopped. तो उसके बाद फिर कोई काम नहीं रहता, तो फिर मैं थिएटर में चले जाता। Okay. और फिर थिएटर सीरियल करके फिर वापस से आता అండ్ धीरे-धीरे। ఆఫ్టర్ అక్స్ మరి లక్ష మూవీ అనేది కూడా हाँ, చేశారు. Laksh also I did, yeah, Yeah, yeah. Laksh yeah. movie లో A ఒక small cameo part, हाँ, cameo, yeah. 2 speeches I gave. Yeah, एक that हिंदी was में, एक very इंग्लिश powerful. में। हाँ, powerful speech. Yes, యా yes, yes. సో ఎలా జరిగింది సార్ అప్పుడు? సో హౌ ఇట్ హ్యాపెన్? అంటే బ్రేక్ అంటే గ్యాప్ ఏమైనా వచ్చిందా Yeah. అక్స్కి అండ్ లక్ష్కి? Laksh, I think 1.5 hours gap, 1.5 year. 1.5 year. Yeah, Okay. yeah. So 1.5 year I was doing theatre. तो थिएटर करता था, कहीं से फिल्म के लिए कॉल आया तो वहाँ जाके स्क्रीन टेस्ट किया। तो लक्ष्य के लिए मुझे याद है कि स्क्रीन टेस्ट होता मेरा, ఆహా. और स्क्रीन टेस्ट के बाद वो लोग बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाता। मैंने कहा कौन सा रोल? तो बोला ये रहता रोल। मैंने कहा ये रोल यार, सिर्फ 2 स्पीच दे रहा मैं। हाँ. बोला यही रहता सर, क्योंकि आप कितना भी रोल रहने तो ये रजिस्टर हो जाता, क्योंकि आप इतना लंबा उधर स्पीच देते। ఓకే तो मैं फिल्म देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, ऋतिक के फ्रेंड वगैरह जो बनते, वो लोग कोई लड़के रजिस्टर होते नहीं, Yeah. पर वो स्पीच दे के आप Speech रजिस्टर दे हो के, जाते हैं। हाँ।
సార్ ఈ గ్యాప్ అనేది కూడా ఉంటుంది. సో ఇంట్లో ఎలా సపోర్ట్ చేశారా? లైక్ ఏంటంటే ఫిల్మ్స్కి వస్తామనేటప్పటికి సో పీపుల్ ఆల్సో సమ్ పీపుల్ పేరెంట్స్ ఆల్సో నాట్ సపోర్టివ్, యువర్ సపోర్టివ్ కైండ్ ఆఫ్. మీకు ఎలా ఉంది సపోర్టివ్ ఫ్రమ్ See, పేరెంట్స్? my support. The thing is that my parents wanted me to compete UPSC and become an IAS officer. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. हाँ, तो जब वैसे ही मैं उनको झटका देता कि अब मैं फिल्म इंडस्ट्री में जा रहा है तो उनका मूड ऑफ हो जाता. पर शुरू में तो मेरे को पैसा चाहिए ही था, तो मैं लेटर लिखता था. तो माँ पैसा भेज देती थी, लेकिन एक लेटर लिखती थी बहुत वो बिटर की जब हम लोग तुमको बोले कि तुम जाके यूपीएससी करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, तुम किए नहीं. अब तुम अपने मर्जी से अपना प्रोफेशन चुनते तो पैसे काय को मांगते मुझसे. ऐसा सब बोलती माँ. तो भी थोड़े टाइम तक मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, मैं थोड़े टाइम तो पैसा लेते ही रहा. उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत मॉडलिंग शुरू कर देता बॉम्बे में, ఓకే. और वहाँ से थोड़ा पॉकेट मनी आता. फिर वहाँ से धीरे धीरे समहाउ बहुत ही मतलब एक कम पैसे में कैसे स्ट्रगल करके धीरे 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 मैं आगे बढ़ा. సో उसी टाइम में बहुत स्ट्रगल्स फेस हाँ, किया. स्ट्रगल तो करना पड़ता है. अगर आप बाहर से आते तो स्ट्रगल तो होता ही है. ओके. सो उसी टाइम में मुंबई में ज़्यादा लोग हैं ना, सो दोस आर ट्राइंग द एज ए हीरोज एंड कमिंग टू द इंडस्ट्री. Correct. उसी टाइम में कैसा सर्वे किया सर? इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम. या इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम बिकॉज एक दिन आपको ऐसा लगता कि सब कुछ सही हो रहा है, और फिर 2-3 दिन के बाद लगता कुछ नहीं हो रहा है. हाँ. ये जो चीज़ रहता ना, जैसे आपको एक स्क्रीन टेस्ट के लिए कॉल आता, आप जाते, आप स्क्रीन टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट हो जाते, तो आप ये सोचते कि आप सेलेक्ट हो जाते, आप अच्छा मूड में रहते, आपको लगता है चलो शॉर्ट लिस्ट हुआ, मैं हो सकता है सेलेक्ट हो जाऊँ. फिर आप सेलेक्ट नहीं होते, फिर पता चलता 2-3 महीने तक एक स्क्रीन टेस्ट भी नहीं आता आपके पास. तो सडनली वो जो एक फीलिंग रहता ना कि एकदम से होप खत्म हो जाता Yeah. कि अब क्या, आगे क्या. और इतना बढ़िया ब्राइट स्टूडेंट था मैं, वो पूरी पढ़ाई का करियर छोड़ के सडनली ऐसा इनडेफिनिट, हाँ, इंडस्ट्री में आना मतलब एक रिस्क तो रहता ही. हाँ. मगर मैं अपने फादर से बात करता तो फादर मेरे को बोलते कि कार्यम साध्यामी व शरीरम पात्यामी वा, या तो कार्य की सिद्धि होगी वरना शरीर का विनाश होगा. ये बात सोच लो. अगर ये बात सोच लेते तो तुम सक्सीड कर जाते. डू और डाई. वाह. तो ये सब चीज़ मैं डाला. मैंने कहा चल अब इधर ही हुआ, अगर कुछ नहीं होता तो इधर ही ख़त्म हो जाता मैं. तो जब आदमी उतना एक्सट्रीम पे जाके सोचता तो फिर सक्सेस उसको मिल जाती है. पर अभी भी बहुत लंबा रास्ता मेरे को तय करना है. What a wonderful lines from your father, really, sir. Thank You given a lot of motivation Yeah, to you motivation in that time. Yeah, in that yeah, time. yeah, Do or die. yeah, do or die. Here only in this industry, Yeah, you have to industry, succeed kind of succeed. thing. Nice. एंड उसके बाद में लक्ष्य, और उसके बाद में तुमको गुलाल गुलाल, हाँ, गुलाल आ गया. हाँ, So गुलाल is one of the Gulal is also one big of the turning prominent point. role. Yeah, prominent role. Yeah. For the first time on Indian screen in a very prominent role. मेरे मरने के बाद पब्लिक को बहुत अफसोस होता, बहुत Yeah. क्रिटिक्स भी बोलते कि यार बहुत जल्दी मार दिया ये कैरेक्टर को. और अनुराग कश्यप को भी अफसोस होता कि यार थोड़ा और इसको स्ट्रेच करना मांगता था कैरेक्टर को. बिकॉज जनरली हीरो इतनी आसानी से बनते नहीं है, मतलब क्रिएट नहीं किए जाते. हाँ. आप कितना भी लिख लो, कितना भी जोर लगा लो, हर बार आप हीरो क्रिएट नहीं होता स्क्रीन पे. तो कभी कभी वो क्रिएट होता है, और उसको भी आपने बहुत जल्दी मरवा दिया. तो वो थोड़ा सा था. मगर हाँ, वहाँ से इमीडिएटली बॉलीवुड की नज़र पड़ी कि ये कोई स्पार्क है, कुछ है. तो बहुत काफ़ी मतलब साउथ के भी, अभी पृथ्वी के साथ मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, उसने भी बोला कि द मोमेंट आई सॉ यू इन गुलाल सर, आई डिसाइडेड दैट आई एम गोना वर्क विद यू वन डे. Yeah. तो ऐसा वो इम्पैक्ट वो भी कैरेक्टर छोड़ा. हाँ. నైస్ సార్. అండ్ మీకు ఇప్పటికైనా గుర్తుందా అంటే ద ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్ ఫర్ అక్స్? For X, 11,000. 11,000 ఫర్ హోల్ మూవీ. Yeah, for whole movie. For Rakta Charitra, 40,000 40,000 for whole movie. హోల్ మూవీ. Yeah, 40,000. yeah, that's it. బట్ యూ క్రియేటెడ్ అనే టూ మచ్ ఇంపాక్ట్ సార్. Yeah. అంటే ఆఫ్టర్ రక్త చరిత్ర డెఫినేషన్స్, క్యాల్కులేషన్స్ Changed. మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది కదా. Immediately after that, when I did Gabbar Singh, around 40 lakhs I got. So straight away that much jump. ఓకే. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద గబ్బర్ సింగ్. Yeah, Gabbar So, Singh was a Power great Star. experience. Yeah, great experience because Pawan sir was very busy. So
हरिशंकर डिसाइडेड टू स्टार्ट द शूट विद मी. ही सेड सर मैं आपके साथ शुरू कर देता. तो पवन सर आ रहे हैं कहीं से. मैंने कहा चलो ठीक है मैं करता हूँ, मेरे पास है डेट्स. तो 10 डेज वो मेरे साथ शूट करता, सिर्फ मेरे सीन्स. ओके. हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन सीन चल रहा, मिट्टी विट्टी लगा के मैं बैठा हूँ, वो सब हो रहा. और करते करते कुछ और बर्नी गारू भी साथ में, तो बहुत अच्छे एक्टर्स का उधर हो जाता कल्मिनेशन, और बहुत अच्छा फील होता. और जब पवन सर आते तो मज़ा आता उनके साथ. तो बहुत ग्रेट पर्सन रहते हो और इतना सपोर्टिव रहते और एकदम कुछ भी इंटरफेयर नहीं करते. जो डायरेक्टर कर रहा वो कर हो रहा. तो पहले ही पता चल जाता कि ये पिक्चर भी सुपर हिट होता. और ग्रेट एक्सपीरियंस रहता हो. और जब वो फिल्म आता तो जो पब्लिक का रिस्पांस, मैं पागल हो गया. मतलब ऐसा रिस्पांस आता उसका. సార్ గబ్బర్ సింగ్ మూవీ కంటే ముందు చాలా ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయి సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. I heard. పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ అంటే ఫ్యాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న మూవీ గబ్బర్ సింగ్ తో వచ్చేటప్పటికి ఈవెన్ నేను కూడా ఇక్కడ ఒక నార్మల్ థియేటర్ లో చూసాను అనమాట. యాజ్ ఎ ఫ్యాన్ గా లిటరలీ ఆ విజిల్ డాన్స్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హాస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద డే. No, but thank God. I mean, with that film again he came back and again he proved that he is the best. या सो उसी टाइम में तुमको थोड़ा मैजिकल मोमेंट्स विद पवन कल्याण सर कुछ भी है? बहुत सारा है. बहुत सारा बहुत. हाँ, मतलब वो ऐसे ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन मुझसे काफ़ी बात करते थे. और वो कुछ भी तुरंत समझ जाते थे. जैसे एक पाइप जो मेरे मुंह में डालना है जिसमें से स्मोक निकल रहा है, वो एकदम हीटेड हो जाता क्योंकि वो सन में शूट कर रहे हैं. ओके. तो वो बोलते कि वो माइक पे पूरा पानी डालो. और मेरा दिमाग वहाँ तक नहीं जाता, बट वो इतना एक्सपीरियंस्ड वो रहते कि उनको सब पता है कि हाँ कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है. तो काफ़ी उनके साथ मेरा अच्छा रिलेशन रहा, अभी भी है. और अभी भी वो कोई भी फिल्म करते हैं तो सोचते हैं कि मैं उसमें काम करूं. अभी पिछली बार भी ऐसा हुआ था पर कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया. मैं कहीं ऑलरेडी ल्यूसीफर पार्ट 2 कर रहा था, ओके. तो वो नहीं हो पाया. पर बहुत जल्द अभी हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं, ओजी. Yeah. OG will release very soon, I guess. So one by one. Yeah, After రక్త చరిత్ర Yeah. came with గబ్బర్ సింగ్. సో ఇలా ఒక్కొక్కటి మాట్లాడుకుందాం సార్ వన్ బై వన్. సో రక్త చరిత్ర టైంలో సో మీ కంప్లీట్ ఇంట్రడక్షన్ కానీ, సో ఆ మట్టిలో ఉండి ఆ ఇంట్రడక్షన్స్ అది కానీ, సో వాట్స్ ద బెస్ట్ సీన్ ఫర్ యూ ఇన్ దట్ మూవీ? The best scene is where my brother comes and he tells me कि तू बुक्का बहुत बाहर खतरा है, तू जेल के अंदर ही रह. And I spit on his face and I say कि तू हमारे बाप का तू बेटा है कि नहीं, मतलब हम लोग कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, तू ये भी भूल गया. और बहुत उसको गुस्सा आता. फिर फादर का डेथ सीन मेरा फेवरेट सीन रहता. जब वो फादर मर जाता और वो बॉडी लेने आती अश्विनी, और वहाँ पे नहीं चाहते हुए भी अचानक से उसका हाथ चलने लगता उस पर, और उसके गन पॉइंटेड है फिर भी वो डर नहीं रहा, बिकॉज वहाँ वो पॉइंट पे उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है. उसको वो फील कर रहा है एज इफ वो ऑलरेडी मरा हुआ है. तो उसको कुछ डर नहीं रहता. तो वो बहुत ही अजीब सा कुछ सीन आया उसमें. RGV ने बोला कि जाते जाते इसका गन लीक कर लो. तो वो एक शॉट जो गन में ऐसे लीक करके गया वो भी कुछ अजीब सा ही हो गया. तो बहुत ही, मैं जब खुद देखा तो मैंने सोचा मैं ये हूँ क्या. వితౌట్ డైలాగ్స్, కంప్లీట్ విత్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. చంగా రాచకం అంటారు. సో యూ కెన్ సే దిస్ ప్రాపర్ మాసీ వర్డ్. Starts also. Yeah. So he's just entering, smoking and just putting petrol on the body. Yeah. And it was amazing. అండ్ కమింగ్ టు ద గబ్బర్ సింగ్ సార్, సో బెస్ట్ సీన్? Gabbar Singh, best scene I would say with me और पवन सर का जो एक्शन सीक्वेंस रहता है उसी में ज़्यादा मज़ा आता मुझे. ओके. क्लाइमैक्स एपिसोड? हाँ, क्लाइमैक्स एपिसोड. ओके. क्लाइमैक्स एपिसोड में मज़ा आता बिकॉज वो स्टार के सामने आप आमने सामने रहते तो ही उसका जो चैलेंज और उसका जो मज़ा है वो तभी रहता उसमें. Okay. So what's the best compliment have you got from these movies, from especially from Telugu industry? A lot of compliments I have got. People say that sir, मतलब मैं यहाँ बाहर निकलता हूँ तो मुझे तेलुगु ऑडियंस इतना प्यार करती है कि आपको बिलीव नहीं होगा. मतलब लोग घेर लेते हैं. और सिद्धप्पा नायडू, बुक्का रेड्डी, हाँ, तो वो मुझे मेरे कैरेक्टर के नाम से बुलाते. वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट रहता. Yeah, okay. कि वो हर कैरेक्टर जो मैं किया उनको वो याद रखते और वो बोलते कि ये कैरेक्टर के नाम से बोलते हो. ఇంతకు లైలాలో మీ క్యారెక్టర్ పేరేంటి? रुस्तम. రుస్తం. ఇంకా నుంచి రుస్తం అని పిలుస్తారు మిమ్మల్ని.
అభిమన్యు సింగ్ అనేది మర్చిపోయారు అందరూ. బొక్కారెడ్డి, సిద్ధారెడ్డి, సిద్ధప్ప నాయుడు, సిద్ధప్ప నాయుడు. ఇలా అన్ని క్యారెక్టర్స్ అనేది కూడా. ఓకే. అండ్ ఇంకా ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే రామ్లీలా హిందీ మూవీ. సో అది కూడా చాలా పెద్ద హిట్. అందులో మీది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ క్యారెక్టర్. సో ఇట్ వాస్ అన్ టర్నింగ్ పాయింట్ క్యారెక్టర్. సో హౌ ఇట్ వెంట్ సార్? Very good. Ramleela, working with Sanjay Leela Bansali was an experience in itself because he's a genius. उनको हर कुछ का नॉलेज रहता, डायलॉग्स का, वॉल के कलर का, म्यूजिक का, कॉस्ट्यूम पहन के आते उसमें क्या ऑफ रहता वो भी उनको पता चलता. ఓకే. तो वो एक कंप्लीट रहते, उनको सब कुछ पता रहता. हाँ. कहाँ क्या हो रहा. कोई एक्टर ने सेकंड टेक में 1 सेकंड का भी ज्यादा पॉज लेता तो वो बोलते कि इस बार तुमने ज्यादा लंबा पॉज क्यों लिया. तो आप एज एन एक्टर शॉक्ड रह जाते कि मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ मेरे परफॉर्मेंस के अंदर ही आदमी काउंट कर रहा सेकंड्स. ఓకే. तो ये प्रिसीजन वो आदमी का रहता. फर्स्ट डे जब मैं जाता उधर तो मुझे कोई बोलता, उनका असिस्टेंट आके कि अरे सर आपको डायलॉग याद होता क्या. मैंने कहा क्या हुआ, अभी तो डायलॉग मिला मुझे. क्यों ऐसे कर रहे हो भाई. आज बंसाली सर का मूड बहुत ऑफ रहता, वो मेरे को बोलता. ఓకే. तो मैं उसको बहुत बुरा झाड़ता. मैंने कहा जस्ट गेट लॉस्ट एंड नेवर शो मी योर फेस अगेन. बंसाली सर का मूड ऑफ रहता है, ये तू मेरे को काय को आके बता रहा. व्हाट्स द पॉइंट इन हाँ, व्हाट्स द पॉइंट. मतलब मेरे को तू नर्वस करना चाहता, क्या करना. खैर तो मैं उधर जाता, बंसाली सर कहते कि अपन रिहर्सल कर लेते. मैंने कहा सर सीधा टेक करते. और वो रॉ स्टॉक पे शूट कर रहे थे तभी रामलीला. हाँ. तो शुरू होता है, 1-2 टेक होते, रीटेक होते. वो बोलते कि मैंने आपको बोला पहले रिहर्सल कर लो. सर गिव मी 2 मिनट्स. उसके बाद मैं शुरू होता फटाफट 1 टेक में. और वो बहुत खुश हो जाते. अभी भी कोई उनसे मिलता है तो वो रामलीला की बात निकलती है तो मेरे कैरेक्टर के बारे में वो ज़रूर बात करते. ఓకే. तो संजय लीला बंसाली एक ऐसे डायरेक्टर हैं कि अगर आपने अच्छा काम करके उनको नहीं दिया तो आपकी ऐसी की तैसी है. और अगर आपने अच्छा काम करके दे दिया तो लाइफ लॉन्ग वो आपके फैन हो जाते हैं. सर नाइस. అండ్ కాకి మూవీ. अच्छा खाकी Khaki मूवी या movie, Tamil and, my God, also South Indian, with धीरन. Karthi garu. हाँ धीरन, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. యా. సో యూజువల్గా మిమ్మల్ని ఆ క్యారెక్టర్లో మేము చూసేటప్పటికి లిటరలీ ఓకే దిస్ వాస్ 100% షూర్ షాట్, విలనిజం ఇస్ దేర్, హీరోయిజం ఇస్ దేర్. ఓకే. సో ఎప్పుడైనా మూవీస్ చూడాలి అని అనుకున్నప్పుడు ద ఫ్యూ క్యాల్కులేటెడ్ పాయింట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ద ఆడియన్స్. సో మీరుండేటప్పటికి ఓకే సంథింగ్ దేర్ లైక్ దిస్. సో ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ ఎలా చేశారు అండ్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ యాక్సెంట్ కానీ హౌ డు యూ క్యాచ్ ఇట్ సార్? सो आई वुड से दिस इज माई ब्रेड एंड बटर. तो करना ही पड़ता. पर वो भी खाकी मूवी का जो किरदार रहता उमा, वो रियल. ఓమా. हाँ उमा वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड रहता. और धीरन करके जो कॉप रहता जो कार्ती ने प्ले किया, वो लास्ट में जाके उसको जस्ट रिटायर होने के पहले पकड़ता. यही स्टोरी रहता उसका. यस यस. और विनोद जो उसका डायरेक्टर रहता, बहुत ही सेंसिबल शांत दिमाग से काम करना. जबकि वो पूरा स्टोरी रहता बहुत ही इंटेंस और मतलब हाई ड्रामा रहता. और हर वक्त देखा ही आपने कैसा रहता, डर भी लगता देख के. और वो डायरेक्टर एकदम शांत रहता, उसको पता रहता क्या करने का है. సో కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్. हाँ, कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट विच वॉज सो अमेजिंग टू सी. ही वुड नेवर लूज हिज टेम्पर इन द एंटायर मूवी. एक बार वो शाउट भी नहीं करता, कितना भी बड़ा सीक्वेंस रहने दो. और बहुत हार्ड वर्किंग रहता वो. तो जिस तरह से वो मेरे को ड्रेस देता, जिस तरह का मेकअप करता, पूरा ब्लैक करता, दांत पे वो सब लगाता. और जब मैं अपना फेस देखता तो मेरे को मैं नहीं दिखता, ओमा दिखता. तो वहाँ पे मुझे लगता कि हाँ अभी मतलब द बैटल इज वन, हाफ द बैटल इज वन. तो फर्स्ट डे वैसा रहता. फिर हॉर्स राइडिंग करना पड़ता. फिर वो सब काफ़ी टफ शूट रहता बिकॉज वो राजस्थान में पूरा धूल का आंधी चल रहा, रेत आंख में जा रहा, मुंह में जा रहा, कुछ भी बैठने का जगह नहीं. और उधर आपको करते रहना. तो एक्चुअली मैं एज एन एक्टर ये फील करता कि डायरेक्टर जितना पैशनेट रहता, डायरेक्टर जितना समझदार रहता, जितना स्ट्रांग रहता, उतना ही एक्टर उसी को फॉलो करता. ఓకే. बिकॉज डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप.
और उसका जो कन्विक्शन रहता वही उसी पे मैं प्ले करता कि अच्छा डायरेक्टर क्या सोच रहा, क्या कर रहा। तो मेरे को लगता कि अगर अच्छा डायरेक्टर मुझे मिलता तो मेरे को बहुत अच्छा फील बहुत होता। अच्छा फील आ रहा है। ओके सर, उसी शूटिंग में एक गोस्ट विलेज में शूटिंग कर दिया ना, हाँ। सो नाइट एपिसोड हाँ, थोड़ा ज़्यादा डर हो गया। हाँ, सो उसी टाइम में कैसा किया सर? वो उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा रहता है, बिकॉज मेरे को कुछ मालूम नहीं रहता कि ये क्या है। ओके। पर मेरे को देख के ऐसा लगता कि कुछ बहुत ही वियर्ड चीज रहता, हाफ वॉल बने रहते। हाँ। ये हो तो मैं किसी से पूछता वहां पे जाके, वॉचमैन से, तो बोलता कि 500 ईयर्स कुछ इधर पे इंसिडेंट होता और रातों रात ये पूरा विलेज खाली हो जाता। खाली हो गया। और उसके बाद से इधर कुछ शूटिंग वीटिंग होती, ऐसा बता के वो रह गया। तो मैं उधर शूट कर रहा, तो वाइफ का फ़ोन आता मेरे, सरगम का, तो वो मेरे से पूछती कि कहाँ पे शूट है। मैं उसको एक लोकल एरिया बताता। हाँ। तो बोलती कि उसी के बाजू में एक बहुत हॉन्टेड प्लेस है, उधर कभी मत जाना तुम। वही है। तो मेरे को तब पता नहीं था। जब वहां से उठ के मैं गया तब मेरे को किसी ने बताया कि हाँ। ये वही जगह है। और वो आदमी बता के उधर चला जाता, वो भी कोई लोकल रहता। और उसके बाद मैं सोचता कि अब मैं सेट पे चले जाऊं, और मैं वॉल से मुड़ के सेट पे जा रहा और वो डिस्टेंस कम ही नहीं हो रहा। और मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा, वो डिस्टेंस इतना लंबा हो जाता। ओके। क्योंकि मैं कुछ सुना और वो थोड़ा सा हॉन्टेड ऐसा लगता। और वहां पे फिर पता चलता, वो वॉचमैन से बात होता कि कोई ऐड का शूट रहता, तो 2-3 बजे कैमरा ऑफ हो जाता, पूरी बैटरी डाउन हो जाती। दूसरा फुल बैटरी मंगाते हो लोग चार्ज, 2 मिनट के अंदर वो बैटरी भी डाउन हो जाती। अरे बाप रे। तो कभी कभी ऐसे इंसिडेंसेस वहाँ हो रहे थे कि जहाँ पे कोई इंटरफेरेंस था और कुछ चीज़ें नहीं। पर हम लोग तो बहुत जल्दी ख़त्म करके निकल गए 10-10:30 बजे। कितना दिन है सर उधर शूटिंग? वहाँ तो 4-5 दिन शूट। 4-5 हाँ, 4-5 दिन उधर ही रहना था। कैसा मैनेज किया सर? हाँ, कर लिए। तो कर लिए। मैडम तुमको बोला ना? हाँ, मैडम बोली। मैडम बोलोगे, उसके बाद तुम्हारा रिएक्शन कैसा है? अरे हाँ, मैं वहीं पे हूँ। मैं एक सुरेंद्र करके एक्टर था, वो भी साथ में बैठा हुआ था। हम लोग वहाँ पे सिगरेट पी रहे थे और मैंने उसको बताया कि यार वाइफ बोल रही है कि जगह है ऐसे ऐसे। तो बोला यही तो बैठे हैं सर आप, यही जगह है वो। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार। तब तक इसका शॉट आ जाता, ये चले जाता, मैं उधर अकेले बैठा रहता। उसके बाद थोड़ा और शाम हो जाता, एकदम सन चले जाता, तब मैं सोचता कि अब मैं जाऊँ। और जब मैं जाता तो मुझे थोड़ा अनईजी फील होता। एंड क्लाइमैक्स शूटिंग में हाँ। वो पूरा डेजर्ट में किया ना सर? पूरा सो आई थिंक इट्स राजस्थान या राजस्थान, जैसलमेर। या बहुत डिफिकल्ट लोकेशन है ना? हाँ, बहुत डिफिकल्ट तो लोकेशन। टेम्परेचर आल्सो वेरी हाई। हाँ। सो उसी टाइम में कैसा किया? और ये इतना दिन है उधर काफ़ी मतलब अच्छा अरेंजमेंट था, सब पानी भी नहीं था ये वो। मगर कई बार एक्टर को कुछ भी करना पड़ता और एक्टर कुछ भी सोच नहीं सकता उस बारे में, बिकॉज जो सिचुएशन है उसी में आपको करना पड़ता है। आप क्या करते? अभी आपको वहीं फाइट करना है, उधर ही आपको सैंड में गिरना है, वो सैंड मुंह में भी जाएगा, so उसमें यू कांट हेल्प इट। Yeah. तो बेसिकली एज एन एक्टर यू हैव टू बिकम वेरी स्ट्रांग, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग ऑल द टाइम, ఓకే mentally and physically also. సార్ మీ కంప్లీట్ ఒక ఫిల్మోగ్రఫీ చూసుకుంటే యూ ఆర్ డన్ అప్రాక్సిమేట్లీ 50 ఫిలిమ్స్, 50-60 ఫిలిమ్స్. సో ఈ 50-60 ఫిలిమ్స్లో సో విచ్ ఈస్ ద హార్డెస్ట్ సీన్ అనిపించింది మీకు ఏంటి? కమింగ్ టు ద యాక్టింగ్ వైజ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. Bukka Reddy only. Bukka Reddy. Rakta Charitra, yeah. Because that took a lot. Because मेरे को याद है कि जब वो मैं रोल कर रहा था तो मेरा एक फ्रेंड आके बिहार से मेरे बाजू को बैठा और वो थोड़ी देर में उधर से उठ के उधर चले जाता. मैं बोला क्यों चले गया उधर? हाँ. तो बोलता कि तेरे बाजू में बैठ के मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा. हाँ. तो मेरे को भी हो रहा था. तो मेरे भी कोई 6-7-8 फीट के क्लोज आए ना तो मेरे को पसंद नहीं आता कि थोड़ा अवेयर रहे. पता नहीं वो क्या हो जाता, कुछ वाइब्रेशन. रोल तो मैं करके निकल जाता लेकिन वो रोल से निकलने में भी मेरे को थोड़ा टाइम लगता. कितना टाइम लगा सर? 6 महीने के करीब. क्योंकि वाइफ बोलती कि तुम ऑफ रहते, या तुम कुछ बात नहीं कर रहे, या तुम ऐसे चुप रहते, ऐसा लगता तुम इधर रह के भी कहीं और रहते. ये चलता रहता. या बीच में वो उठती तो मैं गायब रहता रात को. तो देखती तो मैं देखता कि नीचे सोसाइटी में अकेले बैठ के सिगरेट पी रहा रात के 2 बजे. तो ये सब 2-3-4-5 चीज़ें होती. इसके पहले मैं सुनता था कि ऐसा होता है. Okay. पर जब मेरे साथ ऐसा होने लगा तो मेरे को समझ में आया कि हाँ, एक्टिंग दिखता बहुत आसान है पर है नहीं. कई बार एक्टर ये भूल जाता है कि वो एक्टिंग कर रहा है और कई बार वो कैरेक्टर में ही वो मर्ज हो जाता. कई बार
एज ए इंडिविजुअल यू कैन गेट लॉस्ट कि हु आर यू, आप ये भी प्ले कर रहे हैं, आप वो भी प्ले कर रहे हैं, आप ये प्ले कर रहे हैं, आप हो कौन। तो ये बैलेंस थोड़ा सा सेंसिटिव एक्टर्स के लिए बहुत बनाना ज़रूरी होता है। ఓకే సో దట్స్ ద హార్డెస్ట్ పార్ట్. Yeah, that's the కాకపోతే hardest part. మీరు అంత సూపర్గా యాక్ట్ చేశారు కాబట్టి సో నౌ టిల్ నౌ వీఆర్ రిమెంబరింగ్ యాజ్ యువర్ బొక్కారెడ్డి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, అండ్ అలాగే ఇలాంటి ఫిలిమ్స్ అన్నీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఆఫ్టర్ గబ్బర్ సింగ్ కొన్ని తెలుగు మూవీస్లో కనిపించేటప్పుడు వెయిట్ లాస్ అయిపోయారు. Weight కంప్లీట్ loss. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ Yeah, ఎవ్రీథింగ్. yeah. ఎందుకు ఇలాగా? Because for Gabbar Singh, Harishankar told me to put on some weight. యా He said कि पवन सर का सिमिलर एज ग्रुप में लगना मांगता है, तुम छोटा लग रहा है थोड़ा, हाँ. तो तुम थोड़ा पुट ऑन कर लेते तो हो जाता. तो वो किया मैं. तो फॉर मी गेनिंग वेट एंड लूजिंग वेट इज नो बिग डील, बिकॉज माई बॉडी इज सच कि मैं 6-7 किलो तुरंत 10 दिन में पुट ऑन भी कर सकता और लूज भी कर सकता. तो कैरेक्टर के हिसाब से मैं वैसा किया. जैसे उमा में ही वॉज वेरी या वेरी लीन. हाँ, तो उसमें वैसा ही रहना था उसको. अभी लैला में जस्ट एक हीरो का पूरा लगता हो पर्सनालिटी, तो उसमें वैसा काफ कर दिया. ఓకే तो है थोड़ा सा बॉडी का ध्यान तो रखना ही पड़ता है आपको. So what's your diet secret sir? हमको बोलो सर नहीं, प्लीज. बहुत ज़्यादा अरे नॉर्मल weight loss खाना, और weight put नॉर्मल करके. खाना, इंडियन नॉर्मल खाना. Indian, हाँ, अभी मैं नॉनवेज बहुत कम कर दिया, तो उससे भी वेट लूज करने में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है. आप ज़्यादा वेज खाते ना तो आप वेट पुट ऑन नहीं करते. ఓకే సో అందుకోసం నాన్ వెజ్ పక్కకి తీసేశారు. బట్ హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు మాత్రం अब in బిర్యానీ Hyderabad, yeah, biryani, mutton, chicken, everything I eat here. వాట్ అబౌట్ ద హలీం? Halim, yeah, very good. Very good. Yeah, I had a driver called Ali. He used to get me Halim every time. ఓకే Yeah. ఓకే నైస్ సార్. ఈ మూవీస్ అన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు. సో సో వాట్స్ విచ్ క్యారెక్టర్ మీకు ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించింది? If for in this movie, no, all the movies. all movies. See, Gulal was very satisfactory. I would say Rakta Charitra was very satisfactory. Then, of course, Khaki, Oma, Kirdar. Then this Laila is going to be very satisfactory, I know. In Hindi, Ram Leela. Then Suryavanshi. Suryavanshi. Yeah. Then couple of web series. I did one web series called Bihar Diaries, which is on Netflix, based on a true story. वो भी बहुत अच्छा satisfying work था. तो ऐसा हर काम आप जो करते हैं एज एन एक्टर, ज़रूरी नहीं कि लैंडमार्क हो जाए. बिकॉज वैसा लिखा हुआ होना भी चाहिए कैरेक्टर, वैसा डायरेक्टर भी चाहिए, और वैसा रिलीज भी होना मांगता है फिल्म, और हिट भी होना मांगता है. तब जाके वो कॉम्बिनेशन बैठता है आपका. ఓకే पर उसमें एक भी चीज़ मिसिंग रहता तो ठीक है, एक्टर को तो काम करना ही रहता अपना. సార్ ఇలా చేస్తూ ఉన్నారు. సో యూ డన్ ద థియేటర్స్, దెన్ యాక్టింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. డైరెక్షన్ చేయాలని కానీ ఇలా ఎప్పుడు అనిపించలేదా? Not yet. But yeah, maybe you're right. After maybe 5 years, 6 years, who knows. You have क्योंकि that मेरे को, idea? हाँ, डायरेक्टर को मेरा सेंस रहता मुझे. ఓకే हाँ, सेंस रहता बिकॉज मैं विजुअली सोचता, तो विजुअल्स मुझे दिखते ఓకే किसी भी सीन में. या मैं खुद परफॉर्म भी करने वाला रहता, तो पहले विजुअली मेरे दिमाग में आ जाता कि अच्छा मैं ऐसे जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. वो दिमाग में पहले क्रिएट होता, फिर मैं करता. ఓకే तो वो एक डायरेक्टर के लिए अच्छा सपोर्ट रहता. సో అభిమన్యు సింగ్ గారి దగ్గర నుంచి మూవీ వచ్చిందంటే యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా ఏ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? Entertaining with a social message. సార్ Social message. మీరు ఇప్పటివరకు చేసుకుంటూ వచ్చిన క్యారెక్టర్స్ ఒకలా ఉంటే వాట్ యూఆర్ సేయింగ్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. Different, yeah. No, but yeah, I mean, I feel as an audience कि जब आप मूवी देख के निकलते तो थोड़ा सा आप अच्छा बेहतर फील करते, या थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिलता और अच्छा बनने के लिए, या कुछ गलत काम ना करने के लिए कुछ मिल जाता. जैसे सत्या में रामू जी ने बताया कि तुम कितने भी हीरो बन जाओ, मरोगे कुत्ते की मौत अगर तुम गैंगस्टर हो तो. वो मतलब शॉर्ट लिव्ड है. Short, yeah, right. हाँ, वो जो उनका फेम है या उनका जो ग्लैमर है, पैसे हैं, वो तुरंत खत्म हो सकते हैं. तो बेसिकली मूवी एक दुनिया है. अब वो दुनिया से आप देख के निकलते, आप समझ जाते कि हाँ यार ये मैं एक हॉलीवुड की फिल्म देख रहा था, डॉनी ब्रास्को, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, जॉनी डेप और एल पचिनो की. ఓకే मैं इतना इम्प्रेस हुआ उस फिल्म से, बिकॉज वो रियल लाइफ स्टोरी रहता. और उसमें एक FBI का बंदा अपने आप को प्लांट करता माफिया के बीच में, और वो बताता कि उसको शौक है माफिया में काम करने का, और वो रहता FBI का. ఓకే और FBI वाले उसके थ्रू पूरा इंफॉर्मेशन निकालते माफिया का. మాఫియాగా ఓకే
करते करते एक पॉइंट पे वो माफिया का इन्फॉर्मेशन देना बंद कर देता। तो इसके सीनियर लोग बोलते इसको कि तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है। वो बहुत गुस्से में फोन वोन फेंक देता। तो उसमें एक सीनियर बोलता कि ये इसके दिमाग पे चढ़ रहा, मतलब डॉनी ब्रास्को जो होता वो अब माफिया बन जाता, मतलब माफिया को ज्यादा क्लोज समझने लगता और इनको साइड लाइन करने लगता। ओके। क्यों? क्योंकि वो एक्टिंग कर रहा, उनका दोस्त बनने का, उनका फैमिली मेंबर होने का, एक्टिंग करते करते रियल में करने लगा। रियल स्टोरी सर। रियल स्टोरी। तो उसको हटा के दूसरे को रिप्लेस करता, इसको बचा लेते वो लोग, बचा के इसको निकाल लेते लास्ट मोमेंट पे। मेन डॉन को पता भी चलता कि मेन डॉन को बिलीव ही नहीं होता कि ये ऐसा कर सकता, और उसका पूरा आइडेंटिटी लाइफ लॉन्ग के लिए छुपाया जाता। जब इसको अवार्ड मिल रहा होता स्टेज पे, तो इसकी बीवी और बच्ची रहती, कुछ छोटा सा अवार्ड देते इसको, 10 लोग रहते, खाली ऐसा फोटो इसका क्लिक होता, इसके आंख पे डायरेक्टर कैमरा मारता, तो आंख में उदासी रहता कि कौन से दुनिया से निकाल के मेरे को वापस से इसमें क्यों डाल दिया तूने। पहले उधर भेजा, फिर उधर से इधर निकाल के। तो एक ह्यूमन, उससे मुझे पता चला कि इतना फ्रेजाइल है ह्यूमन माइंड कि आप एक्टिंग करते करते सही में हो गए। तो इस तरह की फिल्म मुझे अच्छी लगती है, या इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरीज। देशभक्ति की फिल्में मुझे बहुत पसंद है, हो सकता है मैं वैसा कुछ डायरेक्ट करूं। Nice, sir. That's why you connected to the Oma's story and all the Khaki movie. Nice. And ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్నారు. సో ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్లో కూడా మీరు కొన్ని మాత్రమే చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో ఎప్పుడైనా డైరెక్టర్స్ని కానీ ఎవరైనా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ క్యారెక్టర్ సంబంధించి సో ఇంతేనా ఉండేది, ఇంకొంచెం పెంచొచ్చు కదా అని ఎప్పుడైనా అడిగారా? See, the director, it is only director's conviction only. Because मैं तो सेम रहता, एज अ पर्सन सेम रहता, एज एन एक्टर सेम रहता, लेकिन डायरेक्टर उसमें क्या नया एलिमेंट डालता एंटरटेनमेंट के लिए, और एंटरटेनमेंट ही फाइनल रिजल्ट देता। बिकॉज अगर एंटरटेनमेंट नहीं रहता तो पब्लिक को फिल्म अच्छा ही नहीं लगता। तो कम से कम तो एंटरटेनमेंट होना मांगता, उसके ऊपर आप और क्या कर सकते हैं। हाँ, तो ये मेरे को डायरेक्टर्स अच्छे लगते हैं ज़्यादा, जो एंटरटेनमेंट के थोड़ा सा और ऊपर सोचते हैं कि हाँ चलो यार एंटरटेनमेंट तो हो ही रहा, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स निकल के कुछ और ऐसा दिखा दिया जो लोगों के दिल में लग जाए, कुछ हो जाए। సార్ హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ డైరెక్టర్ అంటే మిమ్మల్ని విలనీ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కాకుండా ఒక వేరే పర్ఫార్మర్గా చూసిన డైరెక్టర్ ఎవరు? कौन? लाइक हु? एनीवन इन विच इन योर करियर में कौन कुछ डायरेक्टर है तुम्हारा अदर साइड ऑफ द परफॉर्मर देखा? अदर साइड ऑफ द परफॉर्मेंस तो राम गोपाल वर्मा ही देखे। सर उसके बाद राम गोपाल वर्मा का सर के साथ कुछ बात किया? हाँ, बात किया। अब एक और फिल्म किया था मैं, उन्होंने बोला मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तुम करोगे? मैंने कहा हाँ सर करूँगा। कितने पैसे लोगे? मैंने कहा यार सर आपसे क्या पैसे लेने, आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा। तो एक फाइनल कुछ फिल्म किया था। मेरे ख्याल से 3-4 साल, 4-4.5 साल हो गए। उसके बाद से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है मेरी। అండ్ రీసెంట్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ఆర్జీవి గారు ఏంటంటే ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ ఐ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ మై కెరియర్. సో ఇంకా కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ మూవీ, డిఫరెంట్ ఆర్జీవీని మేము చూడబోతున్నామని అన్నారు. సో ఆల్ ఫ్యాన్స్ ఆర్ ఫెల్ట్ వెరీ 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 హ్యాపీ. Yeah, because I also pray and I hope that he makes a huge comeback again, because everybody knows what he's capable of. Yeah. And this is high time now. Yeah. हमको और अच्छा पिक्चर अभी देखना है, और रामू जी अभी और बहुत अच्छा एक नया जन्म उनका होना मांगता है। एक फिर से one more inning. Yes. We need to see his. Yeah. Everyone is waiting. Maybe last 10 overs. Now the power play will start. Now the power play will start. In 10 overs we are expecting him to at least score 100-200 runs. Yeah. Okay. And coming to your family, sir. So love marriage or arranged? Yeah, love marriage. Love marriage. Yeah. In fact, when my Sargam met me, she came in my life. I was surrounded by a lot of people who used to just drink and party and all those kind of stuff, and
I was also kind of enjoying their company and aimlessly working. Basically, you can say that earning money from serials and just chilling out and throwing away and just partying. But उसके लाइफ में आते ही एक डिसिप्लिन आने लगा. उसने पहले ही बोल दिया कि ये तुमको करना पड़ेगा. मैंने उसको प्रॉमिस किया पर वो हो नहीं रहा था, पर धीरे धीरे मुझे करना पड़ा. फिर बेटी आ गई. तो माई वाइफ हैज़ बीन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी लाइक अ रॉक. कभी भी कुछ भी अप्स एंड डाउन्स में शी इज़ देयर फॉर मी. इनफैक्ट उसने मेरी आदत इतनी ख़राब कर दी कि मैं एक चड्डी भी नहीं खरीदता अपने लिए. उसकी शॉपिंग भी वही कर देती है. तो सब कुछ कपड़ा क्या पहनूंगा मैं, क्या है, तो उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करके मुझे बिगाड़ दिया है. मतलब मुझे कुछ भी करना ही नहीं पड़ता. आई जस्ट एक्ट Okay. एंड रेस्ट एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय हर. Well, sir, other than this, you have any business or anything? Complete acting. Complete acting. Oh, Complete so the acting. finance minister is ma'am. Ma'am, yeah. She'll decides take care of all the yeah, things, I don't know. everything. Okay, nice. Okay, and sir, about your daughter. Daughter is when she was born. I wanted the daughter first. Okay. कि पहली बेटी होनी चाहिए. तो बेटी हुई तो मैं बहुत खुश हुआ और बचपन में उसको घुमा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ. गोट को वो खाना खिला रही है, नीचे डॉग्स के साथ खेल रही है, पेट्स के साथ खेल रही है. सब कुछ उसका चलते रहा. होते 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 वो इतनी तेज़ी में वो बड़ी हो गई कि मेरे को बिलीव ही नहीं होता कि इतनी जल्दी कैसे वो बड़ी हो गई. Okay. Because kids, they grow up so fast. Fast. Yeah, you can't imagine. Hmm. And बचपन की अभी भी मैं देखता हूँ और सडनली मुझे लगता है ये क्या हो गया. इतनी छोटी सी थी वो गोद में, इतनी लंबी, इतनी बड़ी कैसे होती जा रही है. Okay. तो अब बड़ी हो गई है, बहुत समझदार है और एक बेटा है मेरा छोटा. Sir, so you're a happy family man and also doing good movies and everything. అంతా బాగుంది. సో లైఫ్లో ఎప్పుడైనా కానీ బాగా బాధపడిన సందర్భాలు కానీ, అరే ఎందుకు ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చాను అని అనిపించిన సందర్భాలు ఏదైనా ఉందా? सी देयर इज़ नो रिग्रेट एज सच बिकॉज मुझे क्या लगता है कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट. अभी इसमें जो मिल गया वो मिल गया. मुझे ये लगता कि मैं आसपास देखता बहुत से लोगों को बहुत पैसे रहते हैं पर फैमिली लाइफ नहीं रहता. Yeah. तो दोनों का बैलेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है मेरे लिए. कि आपको पैसा भी कमाना है, फैमिली को भी संभालना है. बिकॉज फॉर मी आई फील इफ आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन एंड आई कांट गिव गुड एजुकेशन टू माई किड्स, if I can't instill good sanskar in them, then there is no point of me becoming so successful. क्योंकि आप सक्सेसफुल हो, आपने फैमिली को संभाला, अपने बच्चों को आपने अच्छा संस्कार दिया, अच्छा गाइडेंस दिया, तो ही मतलब है फैमिली का. और बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागना, बहुत ज़्यादा एम्बिशन ऐसा मेरे में कभी रहा नहीं. बिकॉज मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा भागने से भी कुछ होता नहीं है. फाइनली होता वही है जो लिखा है, जो डेस्टिनी है. अब आप क्या कर सकते हो, अपने डेस्टिनी को कैसे आप और मजबूत कर सकते हो बाय वर्किंग हार्ड. तो मुझे बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन नहीं है इस लाइफ से कि मुझे लाइफ से बहुत कुछ चाहिए. नहीं, बस ठीक है, जो चल रहा है वही है. और पलक झपकते आप बूढ़े हो जाते हो और आप ख़त्म हो जाते हो. तो इतनी छोटी सी लाइफ में आदमी कितना बड़ा क्यों सोचे कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ. सब कुछ तो यहीं पे छोड़ के चले जाना है. सर इतना चेंज कैसा हुआ है सर? यू टोल्ड दैट वन सो बिफोर మ్యారేజ్, సో మ్యారేజ్ కంటే ముందు ఐఎమ్ కంప్లీట్ పార్టీ గాయ్. సో కానీ ఒక పార్టీ గాయ్ అలా ఉన్న పర్సన్ మీరు, అభిమన్యు సింగ్ అనేవాళ్ళు, సో కంప్లీట్గా ఒక ఫ్యామిలీ మెన్గా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీగా కంప్లీట్ చేంజ్ అవ్వడానికి సో హౌ దిస్ పాసిబుల్ అనిపించింది? See, how it happened was still a secret to me, but when I promised my wife that I won't drink, I won't party much, I won't hang around with my so-called friends, but it was easily said than done, because बोल तो दिया पर वो करना पड़ता तो मुश्किल होता. फिर करते 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 जब बेटी पैदा हो जाती तो फिर उसको देखा मैं उसको ये धरती पे लेके आया. अब क्या, तो वो अपने आप एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता, एक सेंस ऑफ ड्यूटी आता कि अब मेरा ये काम मुझे करना है.
अब मैं फैमिली मैन हूँ, मैं फैमिली बना लिया, तो अब ये पूरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं फैमिली को कैसे संभालूं। तो एक्चुअली ये मैं किया नहीं, वो अपने आप धीरे धीरे वो प्रोसेस में होते गया। या आई लव माई वाइफ टू मच, आई लव माई किड्स टू मच, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट कि हाँ चलो यार, क्योंकि प्यार में ही सबसे ज़्यादा ताकत है। Yeah. तो वही आपको एज अ पर्सन चेंज भी कर सकती है, वही आपको एज अ पर्सन डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। Yes. Both can happen. Yeah, both can happen in love. Either you become someone or you destroy. You're destroyed. Yeah. तो ये चीज़ें रहती है, लेकिन मैं लकी था कि सब चीज़ें धीरे धीरे होती गई, और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म की ओर भी मेरा झुकाव बढ़ते गया। थोड़ा शिव जी की भक्ति करने लगा, तो अपने आप फिर चीज़ें धीरे धीरे संभल गई। Spiritual also. हाँ, लिटिल बिट। Little bit. సార్ ఒకటి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ క్వశ్చన్ అనమాట. Okay. సో మీ మ్యారేజ్ అయ్యి సుమారు అప్రాక్సిమేట్లీ 20 ఇయర్స్, యా 19 years. 19 ఇయర్స్. సో ఈ 19 ఇయర్స్ అప్పుడున్న లవ్ అనేది కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న లవ్ అనేది కూడా కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. Yeah. మ్యారేజ్ కానీ, Yeah, yeah. సో ద రిలేషన్షిప్ అనేది కానీ, సో ఇప్పుడున్న వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది అసలు? See, it's a very tricky question because Yeah, see, that's why I told you. It's an out of the box question. so everything looks beautiful from far, but when you get married, when you start living in the same under the same roof, then problems start happening. Because जैसे फॉर एग्जांपल मैं तभी स्मोक करता था, तो सरगम को, मेरी वाइफ को, मेरे स्मोकिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं था। तभी मैं उसका हस्बैंड नहीं था, उसका बॉयफ्रेंड था। जैसे ही मैं हस्बैंड बना, उसको स्मोकिंग से प्रॉब्लम हो जाता। तो पहले कोई वो बोलती कि हाँ कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम स्मोक करते हो तो, और वो प्रॉब्लम हो जाता जैसे ही शादी हो जाता। तो प्यार तो रहता ही है, बेसिक लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बट बेसिक लव शुड नॉट डाई आउट, Okay. is the main point and main game. Secondly, faith, trust. In marriage, the most important thing is faith. Faith. अगर faith नहीं रहता, जैसे कई मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं नाम नहीं बोलता, वो जिधर जा रहे हैं उनकी बीवियां उनके साथ सेट पे, वो जिधर जाते उधर ही, तो वो भी एक सरदर्दी है हाँ, कि हर वक्त हाँ आपकी वाइफ आपके बगल में बैठी हो और क्या देख रही हो, क्या कर रहा है, तो वो भी एक सरदर्द। तो प्यार एक ऐसा बहुत टेंडर सा चीज़ रहता। शादी के बाद उसका असली आजमाइश होता कि कितना प्यार रहता। लड़ाई झगड़े के बाद भी आप टिके रहते, बने रहते, कुछ इधर उधर नहीं जाते, तब आप धीरे 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 फिर आप फ्रेंड्स हो जाते, फिर आप एक दूसरे को स्पेस भी देते, हाँ ठीक, वो अपने फ्रेंड के साथ जा रहा है, जाने दो ना, ठीक है। Okay. अब मेरी वाइफ मेरे को हर 2 घंटे में फ़ोन नहीं करती कि तुम किधर हो, क्या कर रहे हो, बिकॉज वो एक ट्रस्ट रहता। పర్సనల్ స్పేస్ అనేది ఇస్తూ ట్రస్ట్ అనేది కూడా ఉంది. करेक्ट, दिस इज व्हाट मैरिज इज, एंड इट्स एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ। मुझे भी कई हैबिट अपने चेंज करने पड़े, जैसे मैं कोई भी चीज़ इधर थ्रो कर दिया, टी शर्ट उधर फेंक दिया, जूता उधर फेंक दिया, अब मैं वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि वाइफ बोलेगी ये क्या कर रहे हो तुम, अपना सामान उधर रख दो ठीक से। तो ये सब चीज़ें, मतलब देयर आर स्मॉल थिंग्स, इफ़ यू लीव योर बाथरूम डर्टी शी विल गेट एंग्री। तो एज अ मेल यू फील कि अच्छा अपन मेल है, कुछ भी करके निकल जाओ। पर वो छोटी छोटी चीज़ें कई सारी औरतों को अच्छी नहीं लगती, Okay. तो आपको थोड़ा सा उस पर वर्क करना पड़ता है। फिर ज़्यादा दोस्तबाजी भी नहीं कर सकते आप शादी के बाद। शादी हो गई तो आप काम किए और आपको घर पे आना है, तो धीरे धीरे वो सारे फ्रेंड्स भी कट लिए अपने आप। अब बहुत गिने चुने जो असली फ्रेंड्स थे वही बच गए। ఓకే. నవ్ డేస్ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలంటే కూడా చాలా మంది భయపడుతూ ఆగిపోతూ ఉన్నారు కూడా. सी यू आर राइट, आई मीन टुडे पेशेंस लेवल पूरा ख़त्म हो जाता। और पहले क्या, फीमेल रहती, मेल उसको कुछ भी बोलता, हस्बैंड कुछ भी बोलता, वाइफ को चुप रहना पड़ता। अभी क्या, फीमेल्स भी बहुत स्ट्रांग रहती, एजुकेटेड रहती, वो शिट नहीं लेती आपका। अगर आप उससे बदतमीजी से बात करते हो आपको छोड़ के चली जाती। तो और अभी आजकल ये भी हो जाता कि ट्रस्ट का भी थोड़ा इश्यू हो जाता, एक दूसरे को लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, खुद को ही ट्रस्ट नहीं कर रहे आजकल लोग, दूसरे को क्या करते हैं। तो ये सब 3-4-5 चीज़ें बहुत आज कॉम्प्लिकेट कर गई है मैरिज को। किड्स, अब बच्चे
पैदा कर लेना, फिर उसको पाल पोस के बड़ा करना, वो भी एक बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव हो गया है राइट कि आप किड्स को अच्छे स्कूल में लेके जाओ, में, हाँ, उसको स्टैंडर्ड एक फॉरेन की हर साल एक ट्रिप दो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो मैरिज आसान तो नहीं है, आज के डेट में आसान नहीं है। पहले मैरिज हो जाती थी, निकल जाती थी। आज लड़कियां डिमांडिंग हैं, आपसे डिमांड करती हैं, आपसे एक्सपेक्ट करती हैं। आप उनके हस्बैंड हो तो आप सबसे ज़्यादा टाइम आप उन्हीं के साथ बिताओ। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हो तो बोलेगी मैं भी आऊँगी वहाँ। बहुत कंप्लेंट्स आए हैं। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें होने लगी है। और अब वो अपने आप को मर्दों से कमज़ोर नहीं समझती, और वो है भी नहीं, कभी नहीं थी। हम लोगों ने बना रखा था, पर वो मेंटली तो हमसे ज़्यादा सॉलिड है ना फीमेल्स। हाँ, उनका सिक्स्थ सेंस भी हमसे ज़्यादा अच्छा है। जैसे मेरी वाइफ किसी के बारे में अगर कोई जजमेंट देती है तो हमेशा मुझसे ज़्यादा उसका रहता है करेक्ट जजमेंट। हाँ, किसी पर्सन के बारे में कि वो कैसा है, तो ये फीमेल को गिफ्टेड है। गिफ्टेड मैं माँ को भी देखता था कि पापा से बेटर जजमेंट माँ का रहता था। हाँ तो ये तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं। बचपन से हमने ये भी देखा है कि जिस घर में फीमेल के हाथ में पैसे रहते हैं, मतलब हस्बैंड कमा के पैसे फीमेल को देता और फीमेल घर चलाती, वही घर तरक्की करता है। एज अ मेल अगर आप चाहोगे कि अब मैं तेल मसाला खरीदूं और ये सब का हिसाब रखूं, तो नहीं होता। ओके वो फीमेल के हाथ से ही फिर वो तरक्की होती है। तो ये यू आर राइट दैट टुडे पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज एंड दे आर गिविंग अप वेरी सून। स्पेशली द पेशेंस लेवल इज हाँ, पेशेंस लेवल इज कम्प्लीटली हाँ वोन डाउन, एंड उसमें बच्चों की ऐसी की तैसी हो जाती है। बेसिकली मैरिज, द बेस्ट पार्ट अबाउट मैरिज इज द चिल्ड्रन। यस तो चिल्ड्रन जो जिनको धरती पे आप लेके आए, उन्हीं को आप अलग कर दिए तो उनकी साइकी थोड़ी सी वो हो जाती है, डिस्टर्ब बहुत हो जाती है। तो నైస్ సార్. సార్ ఇప్పటి వరకు మీరు ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అనేది కూడా చేశారు. ఏంటంటే సెంటిమెంటల్ కానీ అండ్ విలనీ కానీ అండ్ ఆల్సో నౌ యూఆర్ డూయింగ్ ద కామిక్ కైండ్ ఆఫ్ గుడ్ రోల్ విత్ లైలా ఆల్సో. అండ్ రొమాంటిక్ మూవీస్ ఏదైనా చేశారా? మిస్ అయినట్టు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? maybe some director someday will come with that idea also. So you are ready to Yeah, why not? romance? Because I'm not dying tomorrow na. ఓకే. So yeah. సో మీరు చేసిన మూవీస్లో ఏదైనా కానీ ఒక రిజల్ట్ చూసి అరే ఎప్పుడైనా బాగా అప్సెట్ అయిన సందర్భాలు ఏదైనా ఉందా? See what I feel कि वो मोमेंट पे जो हो जाता वो हो जाता. Okay. अब बाद में आप सोचते कि अच्छा ये मैं ऐसे कर देता, वो मैं ऐसे कर देता, तो वो हो जाता, वो कभी वर्क नहीं करता. उसी मोमेंट पे अपने को डिसाइड करना रहता कि हाँ चलिए हो गया. Okay. और फिल्म हो गया, फिल्म निकल जाता. कई बार अच्छा फिल्म भी फ्लॉप करता, लेकिन एटलीस्ट उसके रिव्यूज तो अच्छे रहते ना कि ये फिल्म अच्छा रहता. लेकिन आजकल ऑडियंस जाता किधर है? ऑडियंस जा नहीं रहा थिएटर. तो थिएटर में ऑडियंस को लाने के लिए यू हैव टू शो देम समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स. जैसे लैला, तो लैला देखते ही लोगों को लग रहा कि यार थोड़ा टाइम पास तो होता, चल देखते हैं ये फिल्म को. तो अभी तो बड़ी बड़ी फिल्म का भी फ्लॉप हो जा रहा, सब कुछ हो जा रहा, बिकॉज ऑडियंस अभी स्मार्ट भी हो गया. ऑडियंस पूरा वर्ल्ड सिनेमा देख रहा, नेटफ्लिक्स पे पूरा वर्ल्ड का वेब सीरीज देख रहा. तो उनको दुनिया का सबसे अच्छे एक्टर्स भी देख रहे वो लोग, अच्छे डायरेक्टर भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे वो लोग. तो अब तो डायरेक्ट हर सिनेमा का अपना कंपैरिजन पूरे वर्ल्ड से है. अब नाउ जैसे शेक्सपियर यूज्ड टू से दिस, कब शेक्सपियर ने लाइन बोला था कि एंटायर वर्ल्ड इज वन स्टेज. अभी ये बात सच्चा और साबित हो जाता. और शेक्सपियर के भी हजारों साल पहले हमारे वेद में लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार एक परिवार. तो वही तो हो रहा अभी. Now it's became true. నిజాల్లో एवरीथिंग इज ग्लोबल. हर कोई हर एक्टर, यहाँ का एक्टर मेक्सिको में देख रहा हमको, मेक्सिको का एक्टर हम इधर देख रहे हैं. ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీలో కానీ చాలా మూవీస్లో. సార్ ఇన్ని మూవీస్ చేశారు కదా, ఈ మూవీస్లో ఎప్పుడైనా కానీ మీరు చేసిన మూవీస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ బేసిస్ మీద మీరు స్క్రిప్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు? అంటే స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్ ఆల్సో మీది కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. डिफरेंट या सी आई डोंट नो. बॉलीवुड का तो ये रहता कि बॉलीवुड पहले अभी रीमेक बना रहा साउथ का, पर अभी रीमेक भी नहीं चल रहा, क्योंकि रीमेक ऑलरेडी लोग, क्योंकि साउथ का लोग ऑलरेडी फिल्म पहले ही देख ले रहे हैं. पहले 10 years बैक नहीं देखते थे यूट्यूब पे, अभी देख लेते वो लोग. तो अभी रीमेक बना के भी कुछ फायदा नहीं हो रहा. बट यू आर राइट कि वो स्क्रिप्ट लेवल पे ही फिल्म पहले सॉलिड दिखना चाहिए. ఓకే. तब जाके आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत अच्छे सिनेमा में, जैसे पुष्पा.
गिने चुने सीन्स रहते पर सब ऐसा जमा के रहता, एक एक सॉलिड रहता, एक एक पंच, एक एक ऐसा कैनन जैसा पड़ता, वो सिनेमा का इम्पैक्ट रहता। जैसे पहले शोले वोले जितनी पहले फिल्में बनती थी, आज आप जो बहुत सारी फिल्में, मैं नाम नहीं लेता हूँ, पर आप बीच में से ही उठ के बोले कि यार चलो यार क्या देखे इसको, ऐसा भी होता। और कई फिल्म आप देख के निकलते और एक ही सेकंड में भूल जाते कि कोई फिल्म भी देखा, ये भी होता। तो फिल्म का एक इम्पैक्ट रहना मांगता है, तभी फिल्म सक्सेसफुल रहता। जैसे सत्या में देख के निकला तो 3 दिन तक मेरे को ये अफसोस रहता, हाँ, कि अरे भीखू मात्रे खाए मर गया। फॉर 3 days आई वॉज थिंकिंग कि यार व्हाई डिड ही डाई। क़यामत से क़यामत तक मैं देखता आमिर खान खुद को चाकू मार लेता, मैं 10 दिन तक सोते हुए यही सोचता कि यार वो क्यों मर गए यार, दोनों को बचना मांगता था। तो ये सब, ये सिनेमा होता कि आप सोचते कि यार ये कैसे हो जाता। जैसे इंडिया हार जाता तो अपन सोचते कि यार अगर वो छक्का मार देता, 2 दिन तक सोचते रहते कि यार वो धोनी अगर आउट नहीं होता, रन आउट, तो हम न्यूजीलैंड से वो मैच जीत जाते, फाइनल में चले जाते। तो ये सिनेमा का भी है। సార్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ టాప్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి కాల్ కానీ లైక్ రాజమౌళి గారు, సుకుమార్ గారి దగ్గర నుంచి కానీ, సో కాల్స్ ఎప్పుడైనా వచ్చాయా ఏదైనా మూవీ గురించి అలా? देयर आर सो मेनी यार, अब तो मतलब, बट द गुड डायरेक्टर्स जैसे कि आप जो नाम बोले, सुकुमार सर, हाँ, राजमौली सर हो गए, इवन आई लाइक कोरटाला शिवा सर, दो हिज लास्ट మీరు దేవర చేశారుగా? देवरा आई डिड, या, पर वो जैसा रोल बताया वैसा शेप अप नहीं हुआ, कुछ उधर हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग, आई डोंट नो। और तो बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स आर कमिंग अप नाउ डेज यार, एंड दीज आर द डायरेक्टर्स आई वुड लव टू वर्क विद। और जैसे बॉलीवुड में नितेश तिवारी हो गए, जो दंगल बनाए थे, ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर रहते हो भी। जिन्होंने मुन्ना भाई MBBS बनाई, हिरानी, इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर। तो अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स आ रहे हैं अभी, यंगस्टर्स भी, अभी राम भी बहुत अच्छा डायरेक्टर है। अभी पृथ्वी के साथ मैंने किया ल्यूसीफर पार्ट 2, ही इज एन अमेजिंग डायरेक्टर। జస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఆల్ దిస్. సో అప్కమింగ్ మూవీస్ ఆర్ అన్ని చాలా ఫ్యాన్సీగా ఉండబోతున్నాయి. లూసిఫర్ 2, యా, లూసిఫర్ మూవీ సూపర్ హిట్. ఏంటంటే అది మలయాళంలో ఎంత ఉందో తెలుగులోకి ఈవెన్ ఆన్లైన్లో మేము అంటే త్రూ అమెజాన్ కానీ ఇట్లా చూసామన్నమాట. ఎన్నిసార్లు పెట్టుకొని చూసాం, చాలా చూసాం. ఈవెన్ దట్ తర్వాత చిరంజీవి గారు చేశారు, ఇట్స్ ఎ గాడ్ ఫాదర్. సో ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది కూడా అందరిలో అలా ఎక్కిపోయింది. లూసిఫర్ 2 ఎలా ఉండబోతుంది? సో మీ దగ్గర నుంచి ద సేమ్ విలనీ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్? No, it's a very different film. I can't reveal the story and all, but first of all I would like to say a few things about Malayalam cinema. There was a time when the budget of Malayalam films used to be so low, that people like some of the big actors would say, no yaar, we can't work for Malayali movies because they pay less. But today the time is come that Lucifer Part 2 is going to be the biggest budget film of 2025. Total Indian cinema. Yeah, total Indian cinema. Oh my God. And the kind of money they have spent on this movie is to be seen, to be believed. And every single shot is like a gem. And Prithvi, the kind of hard work he's done, the kind of lighting is there, the kind of camera work is there, the way he has designed all the scenes is just mind-blowing. Every single second is a treat to watch. It doesn't look like it's been made in India. Okay. It's as simple as that. If you see the teaser, every frame is looking like it's from Hollywood. So see the time, the circle of the time, it takes a turn. And Malayali cinema, with so much of low budget now, making the biggest movie. budget. This is called time. You remain the same, only the time changes. Right. So మోహన్ లాల్ గారితో యాక్ట్ చేయడము, సో ఎనీ కాంబినేషన్ సీన్స్ వి కెన్ ఎక్స్పెక్ట్? Yeah. There is one small combination between me and Mohan Lal sir. Okay. Yeah, but it is there. Oh, And something he's a is great person. Something yeah. is you are cooking. He's a great person. He's a great actor, as everybody knows, and great co-star. Yeah, he makes you feel so comfortable, and just by watching him, you learn so much. He's so effortless. అండ్ దేవర పార్ట్ 2 లో ఉండబోతున్నారా? I have no idea about Devara Part 2 because I started shooting, and then when I saw the film, I saw that so many scenes are missing. Okay. Then I found out that okay, there is Part 2 also. Part 2.
So I don't know what is happening with part 2. I think they'll shoot or reshoot or they'll have to shoot, I think, because ఇది ఎన్టీఆర్ గారితో ఎలా ఉన్నింది? సో ఎనీ కాంబినేషన్ సీన్స్? I had a lot of scenes with NTR. సో హౌ ఇస్ ద వర్కింగ్ విత్ Yeah, ఎన్టీఆర్? he is very good. He's very good. I've already worked with him in Love Kush, long time back. లవ్ కుష. యా. So I was there. So he's a very good friend and he's a great actor and he's a very intense actor and he makes a lot of sense. And అన్ని మూవీస్ ని కవర్ చేస్తూ ఉన్నారు, అటు So, మీరు కూడా yeah. యాక్టింగ్ అనేది కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇన్ దిస్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఎస్పెషల్లీ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ నియర్లీ 4 to 5 మూవీస్ ఫ్రమ్ యూ. Yeah, 4 to 5 very big movies, different movies like Lahore 1947, Amir Khan production. ఓకే. Directed by Rajkumar Santoshi, Sunny Deol sir, myself, Shabana Azmi and Preeti Zinta. ఓకే. With a big Lahore cast. 1947, yeah, big cast. 15th August, Okay. it's coming out. And so now- that is also a big Bollywood movie, ఓకే. huge. నౌ యు ఆర్ కమింగ్ విత్ అన్ లైలా Laila, ఇన్ వ్యాలంటైన్స్ డే. Yeah, on Valentine's Day, Laila is a must watch. ఓకే. Yeah, ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ నైస్ సార్. రియలీ థ్యాంక్ యూ Thank you సో so much. మచ్. It's a pleasure. It's a pleasure to be యాక్చువల్గా here. మిమ్మల్ని ఒక సైడ్ అంటే ఒకలా అనుకున్నాము, కాకపోతే విలనీ కైండ్ ఆఫ్ సంథింగ్ అని, బట్ యువర్ ఎ కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్, Thank ఫ్యామిలీ పర్సన్. Thank you, అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేది కూడా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసాము. Anytime. రియలీ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. Thank you so much. My pleasure. Yeah. Thank you.